ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? After getting admission in the January 2022 and 6 months is over and now they are saying from our respected dean sir, we have got a mail that our degree is not validated. मैंने 27 जनवरी को एडमिशन लिया। 27 जनवरी से 31 जनवरी 4 दिन तो वो पूरा फरवरी का महीना उतना मेरा ये मान ही नहीं रहा। अब बोल रहा है मार्च से तो हम मानेंगे, उसको भी डिग्री वाला पार्ट नहीं मानेंगे, नॉन अकेडमिक मानेंगे, अकेडमिक नहीं मानेंगे। तो हम पूछ रहे हैं सर कब से मानेंगे, तो बोल रहे हैं कि हम करवा लेंगे उसको मिनिस्ट्री से। वर्बल एश्योरेंस दे रहे हैं, रिटन एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं वो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ 23 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਏਮਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਸ। ਪਰ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਾਕਟਰ ਫਰਜੀ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਵੈਲਿਡਿਟੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਾਕਟਰ ਫਰਜੀ, ਵੀ ਆਰ MDMS ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਲੇ ਏਮਸ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤਰਸਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? Arnab, Dr. Arnab, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ? बाहर से, वेस्ट बंगाल से हूँ। ਵੈਸਟ ਬੈਂਗਲ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਏ ये पहली तो ये एम्स है, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एंड ये मुझे जो डिग्री चाहिए था वो यहाँ पर मुझे वो सीट मिला है ऑफिशियली INICET एग्ज़ाम देने के बाद। और आफ्टर प्रॉपर अलॉटमेंट फ्रॉम एम्स दिल्ली वी हैव एडमिटेड हेयर इन द January 2021। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? After getting admission in the January 2022 and 6 months is over and now they are saying from our respected dean sir, we have got a mail that our degree is not validated and we are working here as non-academic JR and we don't get our degree after completion of the 3 years। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੈਲਿਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਭਵਨੀਤ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਭਵਨੀਤ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਕਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ INI ਸੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮਿਕ JR ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕੈਡਮਿਕ JR ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਨੋਨ ਅਕੈਡਮਿਕ JR ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ MBBS ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕ ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਪੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਤੱਕ OPD IPD ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ JRs ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨॉन अकेडमिक हो? हमने एडमिशन ले लिया। उसके बाद जैसे मैं अपना पर्सनल बात करूं, मैंने 27 जनवरी को एडमिशन लिया। 27 जनवरी से 31 जनवरी 4 दिन तो वो पूरा फरवरी का महीना उतना मेरा ये मान ही नहीं रहे। अब बोल रहा है मार्च से तो हम मानेंगे, उसको भी डिग्री वाला पार्ट नहीं मानेंगे, नॉन अकेडमिक मानेंगे, अकेडमिक नहीं मानेंगे। तो हम पूछ रहे हैं सर कब से मानेंगे, तो बोल रहे हैं कि हम करवा लेंगे उसको मिनिस्ट्री से। वर्बल एश्योरेंस दे रहे हैं, रिटन एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं वो। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ नॉन अकेडमिक ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल हमको एक एम्प्लॉय बना दिया है बस, जो यहाँ काम करता है और पैसे उठाओ जाओ। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, बच्चे, हम अपनी MD करेंगे। हमने MBBS किया है, हमने अपने जीवन के, अपनी जवानी के 5.5 साल दिए हैं। अब आगे MD करेंगे, स्पेशलिस्ट बनेंगे। इन्होंने ख़त्म ही कर दिया उस चीज़ को। एक नेशनल लेवल एग्जाम ली। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ यार, मेरे यहाँ भोपाल में एम्स हैगा, मैं वहाँ जॉब कर लेता। मेरे यहाँ 1845 का अस्पताल है जो सिंधियाओं ने बनाया था, मैं वहाँ JRशिप कर सकता हूँ ना। मैं यहाँ क्यों आऊँगा इतनी दूर?
ना मैं यहाँ की भाषा जानता हूँ, ना मुझे यहाँ का खान पान अच्छा लगता है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं क्यों आऊँगा, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। हम यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर एग्ज़ाम दे के आए थे, INICET। हर देश का टॉप 10 इंस्टीट्यूट में एम्स बठिंडा आता है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारी डिग्री वैलिड नहीं है, हमारा ये टाइम पीरियड काउंट नहीं होगा। इससे हमारी लाइफ के आगे के 6 महीने बर्बाद हो रहे हैं। हमारा कोर्स ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। हाँ जी, तो ये इन लोगों ने हमें नॉन एकेडमिक JR कंसिडर किया है, जबकि हम लोग यहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट दे के आए हैं, प्रॉपर चैनल के थ्रू, एम्स दिल्ली के थ्रू आए हैं। तो हमें जब मार्च में ये लेटर आ चुका था तो 4 महीने तक हमसे छुपा के रखा गया कि हम लोग नॉन एकेडमिक JR की तरह काम कर रहे हैं। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਸੀ। और हमें ये एक प्रोस्पेक्टस है जो मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया था। ये मीटिंग एम्स दिल्ली में हुई थी जो कि 30 मार्च, इसमें लिखा हुआ है 11 बजे मीटिंग हेल्ड ऑन 11th ऑफ मार्च। इसमें ये सारे मेंबर्स थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜਾ ক্লোਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। उसके बाद इसमें जो हमारा पॉइंट है जिससे हम लोग व्यथित हैं, इसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑब्जेक्टेड। जो हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट सर हैं उन्होंने यहाँ पे पीजी कोर्स को स्टार्ट करने पर ऑब्जेक्शन किया है और ये डिसीजन लिया गया कि हम लोगों को नॉन एकेडमिक JRs यानी कि जो यहाँ पढ़ाई नहीं करेंगे केवल काम करेंगे। सुनिए ये जो ऑब्जेक्शन उठाया गया ये जब आप लोगों ने एडमिशन ले ली उससे पहले या बाद में? बाद में, उसके 2 महीने बाद। बनता नहीं, बनता ही नहीं है और हमें बताया भी नहीं है। बताया हमको 21 जुलाई को है डीन साहब ने, 21 जुलाई को डीन साहब ने बताया। हमने फिर कैंडल मार्च किया 22 जुलाई यानी कल डायरेक्टर साहब ने वो वापस ले लिया कि जो डीन साहब ने कहा मैं उसको वापस लेता हूँ, मैं सोमवार को आपसे बात करूँगा। पर अब इसमें बात क्या होनी है जब मिनिस्ट्री से बात आ चुकी है? मिनिस्ट्री से ऊपर कौन है? हमारे साथ तो फ्रॉड ही हो गया। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਗੇ, MBBS ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ MD ਕਰੇਗਾ, ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਖੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਇਹ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? जी मैं समझा नहीं आपकी बात, फिर से पूछेंगे। कि कब से कंसिडर करेंगे? उन्होंने हमें एक ब्लंट एंड छोड़ दिया है कि उन्हें नहीं पता कि वो हमें कब से कंसिडर करेंगे। इनका ऑफिशियली IPD और OT शुरू नहीं हुआ है ऑन पेपर्स, तो हमें नहीं पता कि हमें कब से कंसिडर किया जाएगा। और हमने जनवरी से ज्वाइन किया हुआ है, जनवरी से अब तक हमें कंसिडर नहीं किया गया है। मैं था ना ये पूरे मतलब जो एम्स के थ्रू पेपर INICET होता है उसके थ्रू बाकी हमारे ऐसे सब लोगों की सीटें दिल्ली एम्स PGI सब जगह वो हमारे साथ ही एडमिशन लिया है। तो उन लोगों का जो मतलब सेशन है जनवरी से शुरू हो रहा है, हमारा मार्च तक नहीं माना जा रहा है। बात ये है यहाँ पे, और ना अभी तक बताया कब से माना जाएगा। मैं समझने की कोशिश ये कर रहा ਸੀਗਾ कि ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ जी प्लीज़ कॉन्टैक्ट बेसिस जैसे डॉक्टर्स होते हैं उस तरह से हमें 3 महीने तक माना गया है। मतलब हमें ना PG स्टूडेंट की तरह नहीं माना गया है यहाँ पर। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PG ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ एज स्टूडेंट हुई है। MBBS करने के बाद आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। आपको MBBS की डिग्री मिल गई, आपने 1 साल की इंटर्नशिप कर ली, उसके बाद आप किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी अस्पताल में अपनी MBBS डिग्री और उसके एक्सपीरियंस के माध्यम पे अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उसको कहते हैं नॉन एकेडमिक JR। और MBBS की डिग्री के बाद एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम होती है INICET, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एम्स दिल्ली लेता है। उसको हमने दिया, क्वालिफाई किया, काउंसलिंग करी और हम यहाँ पे आए। उससे हम बनते हैं एकेडमिक PG, उससे हमें डिग्री मिलती है और हमारे काम करने का मेहनताना मिलता है। तो अब आप 2 बात समझे, मैंने एक एग्ज़ाम दी, उस एग्ज़ाम से मैं ये समझा कि आप लोग एकेडमिक PG यहाँ पे आए थे। आप लोगों ने
इन्होंने भी आपको यही कहा कि आप अकेडमिक हो, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि आप नॉन अकेडमिक हो। ये उन्होंने 21 जुलाई को कहा, मिनिस्ट्री ने 30 मार्च को कहा, और हमारी एडमिशन जनवरी में ले ली, जनवरी 2022 में। तो हम किसके पीछे पड़े हैं? हम तो बिल्कुल कहीं के नहीं रहे ना। क्या करेंगे आप? हम क्या कर सकते हैं? हम बच्चे हैं, हम गुहार लगा रहे हैं मैनेजमेंट को। हमारे पास देखिए, हम डॉक्टर्स हैं और हम एम्स में पढ़ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं। हम पढ़ लिख के ही यहाँ पर आए हैं, ठीक है। एम्स का नाम ऐसे ही नहीं मिल जाता। तो भाई इंस्टीट्यूट या तो हमारी ये जो सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं उसे ख़त्म कर दे, हमारी जब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसे कंसीडर करे, वरना जो भी अदर कॉम्पिटेंट नेशनल अथॉरिटी है, जो सेंट्रल बॉडी है, जो हमारे प्रोस्पेक्टस में अदर कॉलेजेस थे स्टार्टिंग फ्रॉम एम्स दिल्ली टू एनी अदर कॉलेज, हमें भाई वहाँ शिफ्ट कर दे। क्योंकि भाई ये तो बिल्कुल जो प्राइवेट कॉलेज में स्कैम होता है, बच्चों को बुला लिया, एडमिशन ले लिया, फिर बोल दिया हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, जाओ कोर्ट केस कर लो। अब ये तो सरकार का ही कॉलेज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ये वाली बात तो मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ। मैं खुद अभी व्यथित हूँ अपनी परिस्थिति से, ये कहने के लिए मुझे परेशान नहीं हूँ शायद। तो आप लोगों को इन लोगों ने अब ये बोला कि आप लोग जाओ या यहाँ रहो और काम करो, कुछ बोला? उन्होंने कहा यहाँ रहो, काम करो और हम ये सब करवा लेंगे। बदले में उन्होंने हमसे एक लेटर मांगा है, उस पर लिख के दो कि हमने जो भी किया है मुझसे सेटिस्फाइड है। तो हमने कहा कि भाई हमारा असेसमेंट हम स्वयं कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारे बॉसेस करेंगे ना, आप उनसे मांगिए। भाई हमारी ट्रेनिंग कैसी हुई है इसका असेसमेंट कोई और करेगा ना, हम स्वयं कैसे कर सकते हैं? तो ये कितने लोग आप? हम 44 लोग हैं। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ ਜੀ 44 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੇਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਾਂਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਾਨ ਅਕੈਡਮਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਏਮਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਏਮਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਡਾਕਟਰ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਸੀ ਇਸ ਏਮਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।